and throughout the world have been affected. And if we talk about the India, 32 crore students have been affected due to this pandemic or unprecedented situation. If we talk about the college and the university students, college and university students have a bigger issue to deal as their final semester examinations which are yet to be commenced, and when will be the exam conducts, God knows. No, nothing is clear about this. Marshall McLuhan, एक कैनेडियन थ्योरिस्ट थिंकर हुए हैं, उन्होंने 1960 के अंदर एक ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट दिया था। ग्लोबल विलेज, विश्व जो है आने वाले समय में मीडिया की वजह से, तकनीक की वजह से संपूर्ण विश्व जो है वो ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो जाएगा, बाउंड्रीज जो है वर्ल्ड की खत्म हो जाएंगी। We have been observed it in the real sense during the pandemic period. Friends, it is an unprecedented situation and education is experiencing one of the biggest shift during this period. If we talk about the classes are physical classrooms has taken the I have been converted into the virtual classroom, and if we talk about the offices are converted, the work from offices is now converted into work from home. Similarly, if we talk about the seminars and workshops, these are now webinars. And LFS, if we talk about the LFS, learn from home, has become the fashion and necessity also, which is redefining the experience of teaching and learning. Though it is not same as the classroom teaching, and it cannot be perfect substitute for the classroom teaching. Moreover, a lot of classroom teaching, especially in the humanities and social sciences, is analytical in nature. अगर हम भूगोल को, इतिहास को इस ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से पढ़ाना चाहें तो वो संभव नहीं है, क्योंकि टीचर का एक्सपीरियंस है, टीचर जो क्लासरूम के अंदर जो इनकलकेट करता है कल्चर के बारे में है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के बारे में है, वो चीजें ऑनलाइन के माध्यम से पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन के माध्यम से संभव नहीं है। अगर हम बात करें साइंस क्लासेस की, साइंस क्लासेस का भी यही है, लैब को अगर हम लगाना चाहें ऑनलाइन के माध्यम से, दैट इज नॉट पॉसिबल इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। PowerPoint presentation is not replaced by the flow of the academic thoughts and the discussion. It is serves as a memory aid. Coincidentally, it's my the personal experience that the slogan raising students who are not regular in the offline classes are more active on digital platform, raising questions about the online classes. Various media reports, if we talk about the various type of the media reports, and they are also depicted that online classes does not click with the rural students. Poor internet connectivity. Friend, poor internet connectivity is also a major issue. Non-availability of the resources is the other major issue. And electronic gadgets like a laptop, palm top, smartphones are also a big issue which cannot help us, which are the hurdles for a large section of the students from the rural areas. Lecture wise often breaks due to the slow connectivity of the net connection. नेट के कनेक्शन की स्लो होने की वजह से। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर अगर आप ग्राफ उठा के देखोगे तो इंडिया के अंदर सबसे कम जो है आपके नेट रेट जो है सबसे कम है, और यूजर्स जो है चाइना के बाद इंडिया के अंदर आता है, यूजर नेट यूजर्स सबसे ज्यादा है। तो कनेक्टिविटी, अगर क्वालिटेटिव कनेक्टिविटी इश्यू की बात करें तो क्वालिटेटिव कनेक्शंस की जो है वो अभी कमी है, उसको जो है उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना होगा। आई हैव नो हेजिटेशन in accepting that this is problem is not one sided, केवल स्टूडेंट्स की साइड से या गवर्नमेंट की साइड से ये प्रॉब्लम नहीं है। My teacher friends, whom I also belong to the teacher fraternity, some of my friends are not ready to change with the time and do not adopt the technology. It is not their fault. उनका फॉल्ट क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज है, वो नहीं है, and they grow up learning in a face-to-face era of the teaching predominated format. Moreover, it is not due to the non-availability of the infrastructure and equipment facilities. मैडम को ज्वाइन करवाना है उसने मीटिंग। मनदीप मैडम
म्यूट करें प्लीज अपने आप को। Moreover, there isn't a proper infrastructure and equipment facilities. Even the webcam installed computers were not available to the faculty members in many prominent educational institutes of the country. Even digital divide of have and have not and lack of the common syllabi are the two big challenges in the field of the online education. Similarly, if we talk about given circumstances, a question arises that what will be the future of online education, or can a online education replace the classroom teaching? In my opinion, different medium and it cannot be replaced the classroom teaching, but certain advantages lies in this medium which we must accept. We should understand that due to the unprecedented situation, online classes are stopgap arrangement. In my opinion, what we are doing is not basically an online teaching or the online education. Similarly, mere computerization is not the digitalization, and digitalization is not the online classes. Whatever it may be, low technology or no technology, exclusion of online during the period of pandemic is not a wise decision, and miss out the affordable advantages that new medium is given to us. Certainly there are the issues, but it is our duty to utilize online resources up to the maximum level. जो भी हमारे पास अवेलेबल है, नेट की फैसिलिटी, नेट का इशू है, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर भी इशू है, लेकिन जो अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, अपना कनेक्शन यूज करके किसी भी तरीके से ज्यादा स्टूडेंट्स तक हमें पहुंचना होगा, ताकि उनको जो है बेटर क्वालिटेटिव एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जा सके। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को हमें यूज करना होगा, व्हाट्सएप है, उसके अंदर फेसबुक है, यूट्यूब है। यूट्यूब के ऊपर मेरे प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो आज का यूट्यूब और ओबीएस है, ओपन ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर हम आएंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले क्योंकि डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, पेंडेमिक की बात हो रही है, कोविड-19 की वजह से 31 अगस्त तक हमारे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय जो है वो बंद है, ऊपर से केंद्रीय सरकार की तरफ से गाइडलाइंस है कोविड-19 की वजह से। तो इन सॉफ्टवेयर को किस तरीके से बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके हम स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं, उसके ऊपर आगे मैं चर्चा करूंगा। रेडियो टीवी का भी जो है हम उपयोग कर सकते हैं। तो common platforms of e-resources in the field of the higher education is the need of the hour. Faculty should be trained by organizing seminars and workshops. IT सेल द्वारा जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, it is a nice effort. We should accept it. We should adopt the technology. We should go with the technology. We should be friendly with the technology and enhance our skills. In online teaching, presence can be fostered by the several creative steps, which includes the posting of the maps, guide for the navigation, audio and video comments. Friends, there are the strategies and techniques for doing effective online teaching and learning, which we must be adopted. While taking online classes, it should be clear in our mind what we will need to teach, what we will need to do, what we really want to achieve, and how do we foster pure learning process, how do we address the diversifying audiences. Finally, how do we help the students to do and learn in the age of the pandemic. Friends, being a media teacher, I must focus upon the educational TV and educational radio. Education TV और educational radio की अगर हम बात करते हैं, तो यूनेस्को की मदद से मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, आप आंकड़े उठा के देख सकते हैं कि 1975 के अंदर यूनेस्को की तरफ से एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, साइट एंड खेड़ा का जो प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट थे। साइट के अंदर 2400 villages of the country and 6 states have been selected for development, good health facilities प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के पर्पज से साइट का एक्सपेरिमेंट चलाया गया था। 2400 विलेजेस के अंदर कम्युनिटी टीवी सेटअप्स किए गए थे उस टाइम पे। तो उन टीवीज के माध्यम से लोगों को मोटिवेट, लोगों को जागरूक किया गया था। इसी तरीके से उससे पहले का इतिहास अगर उठा के देखेंगे मीडिया का, तो रेडियो का भी प्रयोग जो है वो किया गया था लोगों तक पहुंचने के लिए। तो अब जब हमारे पास नेट की कनेक्टिविटी नहीं है, प्रॉपर नेट की कनेक्टिविटी नहीं है, रूरल लोगों के लिए, रूरल स्टूडेंट्स तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रूरल स्टूडेंट्स तक पहुंचने के लिए
रेडियो और टीवी का भी ऑप्टिमम यूज जो है वो करना होगा, इस नीड ऑफ द आवर। क्योंकि अगर आईएनपी मिनिस्ट्री के आंकड़े अगर हम उठा के देखते हैं तो आंकड़े हमें दर्शाते हैं कि जो आकाशवाणी की रीच है वो 98.2 पॉपुलेशन को कवर करती है। जो दूरदर्शन है, जो भारत सरकार का दूरदर्शन है, उसकी रीच जो है लोगों तक 95.2 पॉपुलेशन को जो है वो ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। तो इस स्थिति में रेडियो और टीवी का प्रयोग भी जो है हम कर सकते हैं अपनी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए, या रिमोट एरिया में जो स्टूडेंट्स हैं उन तक अपनी पहुंच कायम करने के लिए, जहां पर नेट की कनेक्टिविटी नहीं है, नेट की कनेक्टिविटी का इशू है। अब इसमें वी शुड, अब कंटेंट के बारे में अगर बात की जाए तो ऑनलाइन का कंटेंट किस तरीके का हो, तो वी शुड एक्ट ग्लोबली, थिंक लोकली। Why I am saying this? Because if we want to establish ourselves on the world level platform, we must be familiar with the latest technology and its updates, and the technology itself is changing day by day. We should adopt the latest technology, we should go friendly with the latest technology, and we should share it with our students. जब तक हम शेयर नहीं करेंगे नॉलेज को, नॉलेज का कोई फायदा नहीं, नॉलेज गेन करने का कोई फायदा नहीं है। जो मैं आज सॉफ्टवेयर्स का डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मास्टर हूँ उस सब्जेक्ट का या उन सॉफ्टवेयर्स का मास्टर हूँ। अभी हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, वहां से मैंने उसको सॉफ्टवेयर को लर्न किया है। उस स्किल्स को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरे भी स्किल्स एनहेंस होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी जो है ओबीएस और यूट्यूब के ऊपर जो है मास्टर बनेंगे और आगे स्टूडेंट्स के साथ भी वो चीजें, नॉलेज को शेयर करके जो है वो आप अपना टीचिंग का जो कार्य है उसको अत्यंत बेहतर तरीके से बना पाएंगे। एंड कंटेंट इज द मस्ट. I said that we should act globally and think locally. Think locally means that we should not forget about the content portion while delivering the lecture. We must understand that the content will always remain the king of or the owner. If we talk about the nature of the digital media content, it is the informative and infographic in nature. डिजिटल मीडिया की एक खूबसूरती ये भी है कि जो इसका कंटेंट जो है वो आपको ग्राफिक शेप के अंदर मिलता है। यदि आप हरियाणा गवर्नमेंट की वो कोविड-19 की रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट अगर देखते हैं आपको प्राप्त होती है तो वो आंकड़ों की शेप में होती है। उससे हमें अंदाजा लग जाता है, हमें देखने की जरूरत नहीं है, उससे हमें अंदाजा लग जाता है जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम ऊपर होता है। एक पेज के ऊपर पूरी स्टेट की जो है वो रिपोर्ट होगी, उसमें जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम ऊपर होगा, आंकड़े होंगे, फिगर्स होंगे, अभी आज इतने केसेस आए हैं कोविड-19 के। तो ये गवर्नमेंट की साइट के ऊपर अवेलेबल है। तो उससे क्या है कि टाइम की बचत होती है, धन की बचत होती है, और हम एक सिंगल क्लिक के साथ जो है हमें आइडिया लग जाता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या स्थिति है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर हम WHO के कोविड-19 के आंकड़े अगर देखते हैं तो वो ग्राफिक शेप में हमें एक स्लाइड में या दो स्लाइड में पूरे वर्ल्ड की कंडीशन का पता चल जाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द content of the digital media. By using graphics, by using animations, we should make it better, we should make it more presentable, we should reach our target audience in a wonderful manner, and message will be effectively delivered. अगर इसको हम यूज प्रॉपर तरीके से करते हैं तो लेक्चर का भी वही है, लेक्चर को हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए यदि हमारा कंटेंट अच्छा है, डिलीवरी प्रोसेस अच्छा है, मैसेज अच्छा है, मीडियम अच्छा है, तो वो चीजें जरूरी है। बीइंग ए मीडिया टीचर मैं आपको यहाँ पे ये भी फोकस करना चाहूंगा कि जब हम कोई भी मैसेज, ऑनलाइन टीचिंग का या कोई मैसेज जब डिलीवर करते हैं, वी मस्ट स्टडी द मीडिया हैबिट्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स हु आर आवर टारगेट ऑडियंस। मीडिया हैबिट्स, किस प्रकार का मीडिया हमारे स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स हमारे स्टूडेंट के पास, कितने स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन्स है, कितने स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप्स है, इस तरीके के आंकड़े जो है हमारे पास होने चाहिए। कोई भी स्थिति लॉन्च करने के लिए, कोई भी जिस तरह ऑनलाइन प्रोग्राम जब हम लॉन्च करते हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो टारगेट ऑडियंस है या स्टेक होल्डर्स हैं वो किस मीडिया का प्रयोग करते हैं और किस तरीके से उन लोगों तक पहुंचा जा सकता है। तो ये तरीके हैं। और अगर बात करें जिस तरह इन डिजिटल मोड, देयर आर lot of platforms also to communicate. Therefore, medium which disseminate the information must be selective by keeping in the view of our target audience. Digital platform is becoming extremely important nowadays, not only in the pandemic period, but it is important in the post-pandemic era also, and it have a potential to become very important part of the life. Friends, national program of the technical enhancement learning is the need of the hour. हमें
केवल थ्योरी नहीं पढ़ानी है बल्कि एप्लीकेशंस को भी पढ़ाना होगा, एप्लीकेशंस को सीखना भी होगा, पढ़ाना भी होगा और एप्लीकेशंस को शेयर भी करना होगा। तो मैं आज अपने टॉपिक पे अब आना चाहूंगा। जो मेरा आज का प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है, टुडे presentation of my topic is OBS and YouTube. I will share the screen with you people. Are you getting my points? I think I am clear. This is the introductory part of my presentation. You are good. Go ahead, sir. You are loud and clear, and you are Thank you. bang on the target. Please go ahead. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I am presenting my screen. I think my screen is audible to all the participants. Today, topic of my presentation is open broadcaster software and YouTube channel and its usage in the field of the education. तो मैं, क्योंकि भाषणबाजी बहुत हो गई है, ओपन ब्रॉडकास्टिंग का थोड़ा सा आपको बताने के बाद मैं उसके ऊपर आना चाहूंगा, इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर आना चाहूंगा। ओपन ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर स्टार्टेड आउट एज ए स्मॉल प्रोजेक्ट created by the Hub Jim Bailey, but quickly grew up with the help of many online collaborators. ये पहले जो यूज होता था सॉफ्टवेयर, जो मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर और गेमिंग्स के अंदर इसका यूज होता था, लेकिन अब इसका जो यूज है वो कोविड-19 के दौरान या कोविड-19 से थोड़ा सा पहले अगर हम देखेंगे तो एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी मीडिया एजुकेटर्स या डिफरेंट एजुकेटर्स, डिफरेंट फील्ड ऑफ एजुकेटर्स एंड साइंटिस्ट के द्वारा भी इसका यूज किया जाता है। ओपन ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर search engines, you can click on the Google or any search engine, you can write OBS and you can download this software. It is free of cost. It is free open source software and you can download it in any system having Windows, Linux. It is compatible with Windows, Linux and Macs. Its flow allows us to record your screen, webcam, images, slideshows, text without any hurdle and without any watermark. Its recording quality is very good. It's you can record your lectures by face recording, इमेज रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। फेस रिकॉर्डिंग का हम डिस्कस करेंगे, अब उसके अंदर फेस रिकॉर्डिंग के बारे में करेंगे, इमेज रिकॉर्डिंग के बारे में भी। इमेज प्लस फेस रिकॉर्डिंग भी आप इजीली सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप इजीली कर सकते हैं। स्क्रीन प्लस फेस रिकॉर्डिंग इज आल्सो पॉसिबल ऑन दिस सॉफ्टवेयर एंड इमेज प्लस फेस रिकॉर्डिंग इज आल्सो available on this software. And my second component of presentation is YouTube. YouTube के ऊपर हम ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है, और YouTube की मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू अपलोड द लिंक, हाउ टू अपलोड योर वीडियो, उसके बारे में बताऊंगा। YouTube के ऊपर एक अलग से सेशन हो सकता है, वो या तो कोई और मेरा टीचर साथी या मेरे को अगर ड्यूटी असाइन की जाएगी तो मैं YouTube के ऊपर आगे किसी अन्य सेशन में आप लोगों को बताऊंगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई विल go on OBS, open broadcaster software. ओपन ब्रॉडकास्टर आपको अब स्क्रीन मेरे ख्याल में दिखाई दे रहा होगा।
मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा स्क्रीन आपको सामने होगा। ओबीएस को आप OBS Studio, you can click on OBS Studio. Nowadays it is called OBS Studio. Here you can download it by clicking on the download option. एंड जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया था, इसमें दे भी रखा है कि ये आपसे विंडो, अगर आप विंडो के ऊपर डाउनलोड कर रहे हैं तो विंडो का साइन है, ये एप्पल मैक का है, ये लाइनेक्स का साइन है। विंडो में आपसे पूछेगा कि आपके सिस्टम की कंपेटेबिलिटी क्या है, 32 बिट कंपेटेबिलिटी है, 62 बिट है। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, जब आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें तो अपने सिस्टम को एक बार अपडेट जरूर कर लें, ताकि ये जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छे तरीके से आपके सिस्टम पे चल सके। ऑलरेडी डाउनलोडेड है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये सॉफ्टवेयर जो है आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा। और इसके फीचर्स दे रखे हैं, फीचर्स इसमें भाई क्या क्या फीचर्स हैं इसमें। रिकॉर्डिंग का अच्छा है, ये सारे फीचर्स जो हैं इसके होम पेज के ऊपर अवेलेबल हैं। स्क्रीन का हम उसमें जाएंगे, सीन्स जितने चाहे उतने सीन्स जो है आप इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ योर टीचिंग, अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफ योर लेक्चर। ऑडियो रिकॉर्डिंग इज वेरी हाई एंड पावरफुल। इसमें डेस्कटॉप पे जो ऑडियो है वो आप शेयर कर सकते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ, टारगेट ऑडियंस के साथ। वीडियो कैप्चर आप इजीली कर सकते हैं, वीडियो कैप्चर की जो ऑडियो, इट इज आल्सो गुड। एंड इफ यू अबाउट टॉक अबाउट द कलर्स, कलर्स भी जो है इसमें अपनी पसंद के जो कलर्स हैं वो टेक्स्ट के अंदर या इमेजेस के अंदर कलर्स जो है वो डाल सकते हैं, बैकग्राउंड के अंदर इमेजेस आप जो है कलर्स डाल सकते हैं। इसमें एक इसका बहुत अच्छा फीचर है जो इस सिस्टम का, ओबीएस का, it is that we will go on live medium. We can use this software and go on live button. And now without wasting the time I will come on the OBS. ये आपको सीन जो है मेरे ख्याल में आ गया होगा, स्क्रीन जो है वो क्लियर है। सीन इसमें हम जनरेट कर सकते हैं, ये ओबीएस का है। ओबीएस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है इस तरीके की विंडो जो है आपके सामने जनरेट होगी। विंडो किस तरीके की है आपके सामने, ये इस तरीके की विंडो आ जाएगी जब आप ओबीएस पे क्लिक करेंगे। जनरेटेड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पहले से जनरेटेड सीन 2 जो है ये पहले से जनरेटेड है। टेक्निकल सेशन ऑन द ओबीएस यूट्यूब, इस तरीके से स्क्रॉलिंग जो है आप टेक्स्ट की, अपने टेक्स्ट की स्क्रॉलिंग है वो भी आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्योंकि मेरे को वीडियो शेयर करनी पड़ेगी, वीडियो जो मैं अगर ओबीएस के ऊपर, दैट्स व्हाई आई विल गो ऑन द गूगल मीट फर्स्ट। and switch off my video so that I will use this video in the OBS. Again, I shift it to the OBS, and this is the scene 2, scene 3. This is the scene 3, which are generated already. And I go on the scene 4, which is blank, which is for you people. Three things are important here. One is the scene, second one is the source, and other one is the start recording. When you want to start your recording the lecture, you can click on this. If you click on this, it will start recording option will convert it into the stop recording. You can stop your recording and see your recordings in by going to the file, add file, show recording. When you click on the show recording, this kind of thing will appear. These are my earlier recordings. You can record your lecture and they see here.
This is a video which my son has generated. While you want to create your own video on the lecture, you go on the scene. If you want to change the background from black to blue or any other color, you can go on the sources button and click on the plus button, which will add the color sources. You can click on the color sources and click on the create new. Okay, select color. Here you go and select the colors according to your choice and according to your requirement. Suppose green color is my favorite color. I want my background in the green color. I will click on this and click on the OK button. This screen will appear before you. और सोर्सेज पे आपको वन बाय वन जाना है, ऐसा नहीं कि एकदम आप सारी चीजें ले लेंगे. ये ओके हो गया ग्रीन कलर का, आप इसको ओके कर दें. देन अगेन गो ऑन द सोर्सेज. इफ यू पुट द वांट टू पुट द इमेज हियर, अगेन क्लिक ऑन दिस. समझ में आ रहा है आप लोगों को? एम आई क्लियर? Yes, sir. Okay. सोर्सेज में जब हम क्लिक करते हैं, सोर्सेज के अंदर जो है ये कलर सोर्स तो मैंने कर दिया है. अब मैं एक आपको बताना जो प्लस का वो आएगा, आप प्लस करते हैं तो ऑडियो इनपुट्स है. सबसे पहले ऑडियो इनपुट्स आता है. ऑडियो इनपुट आप कैप्चर करते हैं तो सिर्फ जब आप ऑडियो अपना देना चाहते हैं या ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं या ऑडियो का सोर्स जो है ऐड करना चाहते हैं, माइक ऐड करना चाहते हैं, स्पीकर ऐड करना चाहते हैं अपनी डिवाइस के साथ, यू शुड गो ऑन ऑडियो कैप्चर एंड ऑडियो विल बी रिकॉर्डेड. When you click on the record button. Similarly, audio output capture also adds a feature on the desktop. Next is the browser. Any other thing you can browse and select and click OBS. ये सोर्स या स्टूडेंट्स को जो दिखाना चाहते हैं, सपोज करो मैं OBS का लोगो या OBS के बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ. ये अपीयर हो गया है अपने आप. ओके करेंगे, ये जनरेट हो गया. You have just added the browser. ये हमने ब्राउज किया है. ब्राउज करने के बाद OBS का जो URL है वो ऐड हो गया. URL आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं. चेंज करने का ऑप्शन क्या है? When you want to change your ब्राउजर पे जाके आपको डिलीट ऑप्शन, या तो डिलीट ऑप्शन कीबोर्ड अगर आपके पास है तो डिलीट इसको कर सकते हैं, और कीबोर्ड अगर आपके पास नहीं है तो माइनस बटन से भी आप जो है क्लिक करके इसको कर सकते हैं. आर यू श्योर यू विश टू रिमूव द ब्राउजर? यस. अब कोई नई इमेज अगर आपने डालनी है तो नई इमेज पे फिर आप क्लिक करेंगे. जाके ब्राउज से करना है, नेट से सर्च करके डालना चाहते हैं, यू विल गो फॉर द चाहते हैं तो वो भी चीजें जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट है कलर सोर्स. कलर सोर्स का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. कलर सोर्स अगर आपने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है या टेक्स्ट का कलर चेंज करना है वो आप उसके अंदर कर सकते हैं. डिस्प्ले कैप्चर पे जब आप जाएंगे, डिस्प्ले कैप्चर क्योंकि इसका मेरा जो लेक्चर है वो पॉसिबल नहीं है, गूगल मीट पे ऑलरेडी चला हुआ है. डिस्प्ले कैप्चर पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी और आपका कैप्चर जो है वो डायरेक्टली जो है वो कैप्चर हो जाएगा. आपका स्क्रीन जो है वो कैप्चर हो जाएगा इसके अंदर और स्क्रीन जो है लोगों को दिखाई देने लग जाएगा. ये मेरा इसलिए कैप्चर नहीं होगा क्योंकि गूगल मीट पे ऑलरेडी मैं शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, इसलिए कैप्चर नहीं हो रहा. तो ये कारण है. इसको हम डिलीट करते हैं. डिलीट. ओके. स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है? समझ में आ रहा है? प्लीज एक बार बता दें मेरे को, ताकि मैं अगर धीरे होना होगा तो धीरे हो जाऊंगा, क्योंकि 1 घंटे का टाइम है. 1 घंटे में सारी चीजें कवर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है. Sir, everything is clear. ओके, थैंक यू मैम. गेम कैप्चर्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बच्चे करते हैं इसमें. पबजी वगैरह जो है वो कैप्चर
करते हैं और चलाते हैं, लाइव गेमिंग वगैरह का भी है। इसका ज्यादा यूज जो है बच्चों द्वारा पहले किया जाता था, अब एजुकेशन सेक्टर के तो गेम कैप्चर वाली अपनी रिक्वायरमेंट नहीं है। इमेज का मैं जरूर बताना चाहूंगा, इमेज को जो है हम कैप्चर कर सकते हैं। इमेज हम अपने स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट के, click on OK, then click on the browse। ये मेरे कंप्यूटर से अब इमेज जो डेस्कटॉप के ऊपर जो अवेलेबल हैं, उन इमेजेस में अगर हम जाएं तो ये YouTube वाले फोल्डर में पड़े, तो ये क्लिक किया। अब हम इसमें अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी इमेज जो है वो शेयर कर सकते हैं। सपोज करो हमें बीइंग ए मीडिया टीचर, मैं 15 अगस्त वाला जो प्रोग्राम हुआ है उसके ऊपर प्रेस से रिलीज स्टूडेंट से लिखवाना चाहता हूं, तो 15 अगस्त की जो इमेजेस हैं वो शेयर जो है वो इसके अंदर कर देता हूं। शेयर किया मैंने, क्लिक किया, ये साइज बड़ा हुआ आ गया इसका फोटो। इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। इसकी सॉफ्टवेयर की ब्यूटी है, जो इमेज है उसको हम छोटा बड़ा अपने हिसाब से जो है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है उसके अंदर डाल सकते हैं। इमेज डाल के हम फिर यदि विजुअल्स के साथ साथ कोई टेक्स्ट भी अगर डालना चाहते हैं तो टेक्स्ट भी हम डाल सकते हैं उसके अंदर। ये इमेज आ गई, इसमें इमेज में जो है ध्वजारोहण का जो सीन है वो दिखाई दे रहा है। उसमें हम स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज जो है वो दे सकते हैं कि भाई आप जो है ये प्रोग्राम है, कल्चर प्रोग्राम है, दिस इज द फोटो। आप फोटो कैप्शन तैयार कर सकते हैं, फोटो कैप्शन लिख सकते हैं। फोटो कैप्शन नहीं लिखना तो न्यूज आइटम जो है वो तैयार करके दिखाएं। तो इमेज के माध्यम से ये इमेज का हो गया। इमेज में अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, दूसरी इमेज अगर दिखाना चाहते हैं, तो वी विल गो ऑन डिलीट ऑप्शन, we will select the, click on the image and then delete the option, delete option. Then if we want to add another image, we will go on the image, we go on the source, then click on the plus button and image, click on the image and add existing. We should create the new. Add existing means that already there are the image. If I click on the add existing, it will not take. Therefore we should add existing में भी अगर इमेज अगर हम लेना चाहते हैं तो इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। कौन सी इमेज ये पूछ रहा है, सॉफ्टवेयर इज आस्किंग विच इमेज, दिस इमेज। ओके, देन ये क्योंकि एड एग्जिस्टिंग इसलिए एड एग्जिस्टिंग सीन 2 मैंने आपको दिखाया, सीन 3 एंड सीन 4 में ऑलरेडी जो ये इमेज है वो लगी हुई है इस सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो हम इस तरह सब्जेक्ट की अपने लेक्चर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वी शुड जनरेट these scenes and add the text also from the sources. Okay, we'll go on the our source. Okay, अब इसके अंदर टेक्स्ट अगर हमें ऐड करना है, टेक्स्ट वी विल गो ऑन द इमेज स्लाइड शो है, उसको हम बाद में करेंगे। इमेज स्लाइड शो भी हम दिखा सकते हैं। टेक्स्ट अगर ऐड करना है, टेक्स्ट के नीचे क्लिक किया, टेक्स्ट, क्रिएट न्यू। ओके, वी विल राइट आवर टेक्स्ट हियर। We are going on, the lecture is going on the obvious lecture. We write here lecture. कर दिया। अब it is white in color। अब इसका कंटेंट का अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस चीज का हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर के ऊपर क्या शूट करेगा क्या नहीं, इसका अकेले कंटेंट का जो बैकग्राउंड है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। वी विल सिलेक्ट द फॉन्ट हियर। दिस फीचर इज लाइक एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर भी इसी तरीके से आप फॉन्ट्स वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो फिर फॉन्ट अपनी मर्जी का, मैं टाइम्स न्यू रोमन अगर इसमें करना चाहता हूँ तो टाइम्स न्यू रोमन पे जाके क्लिक, लिखा टाइम्स न्यू रोमन, ये टाइम्स न्यू रोमन आ गया मेरे कंटेंट का। ओके किया। अब मैं इसको बोल्ड अगर करना चाहता हूं या
इटैलिक करना चाहता हूँ, ये ऑप्शंस भी है। बोल्ड एंड इटैलिक मैं अगर करना चाहता हूँ, आई विल गो ऑन फॉन्ट स्टाइल, regular mode is already available, bold or bold italic. I will click on this bold italic. Okay, I will increase or decrease the font size also. From here it is the font size 72 अगर मैं करता हूँ तो इसका साइज जो है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं ओके किया, फॉन्ट साइज जो है आपका वो उसमें बढ़ गया, तो ये चीजें हैं ओके। 72 है, 72 में ये कम हुआ है, तो इसको मैं अब इंक्रीज अगर करना है या डिक्रीज करना है तो ओके किया, ये इसको यहाँ नीचे लेके आए। दिस विल गो बाय द कर्सर, इस पे क्लिक करके जब आप कर्सर के साथ माउस में लेफ्ट क्लिक करके करेंगे तो कर्सर के साथ जो ये नीचे आ गया, इसको आप बढ़ाना चाहें इससे जो है आप बढ़ा सकते हैं। लेक्चर ऑन ओबीएस, अब ये क्योंकि क्लियर नहीं है, इसको स्क्रॉल अगर हम करना चाहते हैं तो स्क्रॉल वाला जिस तरह जो पुराने सीन्स के अंदर ये चल रहा है, टेक्निकल सेशन ऑन ओबीएस एंड यूट्यूब, इस तरीके का अगर हम करना चाहते हैं, रनिंग में अगर मैटर को करना चाहते हैं, तो अगेन वी गो ऑन द टेक्स्ट, इस पे डबल क्लिक करेंगे, टेक्स्ट जीटीआई के ऊपर डबल क्लिक किया और इस पे जो ओके ये सीन 4 के ऊपर गए और इसके टेक्स्ट के ऊपर गए। टेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद हमें राइट क्लिक, जब हम माउस को राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा फिल्टर्स का। फिल्टर्स पे क्लिक करके ये समझ में, इसमें क्या है कि टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया हमने, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद फिल्टर्स का ऑप्शन आपके सामने जो है वो आ गया। फिल्टर्स का ऑप्शन जब हम करते हैं तो फिल्टर्स जो है फिल्टर्स पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक किया, फिल्टर्स पे जाके हम इसको लेक्चर ओबीएस आ गए, इसमें प्लस करेंगे, प्लस करके स्क्रॉल पे क्लिक किया हमने, स्क्रॉल को ओके किया। इसकी स्पीड जो है हम अपनी मर्जी से अपोजिट, या देखो रनिंग में हो गया हमारा। टू मेक आवर प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग और इट मेक आवर प्रेजेंटेशन लाइवली वी शुड यूज दिस फीचर। क्लोज, इसके कलर्स को भी अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो कलर्स भी जो है वो चेंज हो जाएंगे। कलर्स को चेंज करने के लिए टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसमें फिर पीछे नीचे वर्जन दिए हुए हैं कलर्स, सिलेक्ट कलर, हम अपनी मर्जी से कलर जो है कंटेंट का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं अपनी चॉइस का। सपोज करो ब्लू हम करना चाहते हैं तो ब्लू पे क्लिक किया और ओके का जब करेंगे तो कलर जो है वो चेंज हो गया। आई थिंक यू हैव गॉट माय पॉइंट। ये अभी नोट करने का आप नोट कर रहे हैं, बाद में भी अगर पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, और अगर किसी ने ओबीएस को डाउनलोड कर रखा है, लाइव अगर कर रहा है तो वो पूछ सकता है, पूछना चाहे तो। ऑनलाइन मोड की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इट इज वन साइडेड। क्लासरूम टीचिंग के अंदर आप जो है देख सकते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। ऑनलाइन मोड के अंदर, क्लासरूम टीचिंग के अंदर भी ये रहता है कि फिजिकली बच्चा प्रेजेंट रहता है, मेंटली है या नहीं उस चीज का पता नहीं चलता, लेकिन ऑनलाइन मोड पे तो हमें बिल्कुल नहीं चल पाता। तो ये चीजें आप सारे जो है अपने उसमें कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं, या आगे भी अगर इन फ्यूचर अगर आपको रिक्वायरमेंट है मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में आके आप कभी भी इस बारे में जो है पूछ सकते हैं। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप इसके अंदर एक्सपर्टाइज जो है आपको हासिल हो जाएगी। ये हो गया। इसमें अब मैं सपोज करो वीडियो शेयर करना चाहता हूं अपनी, वीडियो के लिए क्या करना पड़ेगा, जब आप लेक्चर के अंदर अपनी वीडियो अगर डालना चाहते हैं, यू शुड गो ऑन, आई विल द फर्स्ट सीन, सेकंड सीन, और इसमें जो वीडियो क्या दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन के सामने, अब ये आ गया इस तरह। ये कैसे आया, ये प्लस का जब मैंने क्लिक किया तो ये आ गया। इसमें आप जो है वीडियो कैप्चर, इसके अंदर दिया हुआ है वीडियो कैप्चर, जो टेक्स्ट GD1 वीडियो कैप्चर है। वीडियो कैप्चर पे जब आप क्लिक करेंगे और क्रिएट न्यू, ओके,
ये वीडियो जो है आपके सामने जो है वो जनरेट हो जाएगी। इस वीडियो को आप पे, क्योंकि आपकी इमेज के ऊपर आगे, इस वीडियो को आप इधर ले जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि रिकॉर्डिंग जब आप करते हैं तो रिकॉर्डिंग आपकी इमेज रिकॉर्डिंग हो सकती है, इमेज प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग। तो ये इमेज भी है, इमेज प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग प्लस टेक्स्ट भी आप जो है रनिंग में दे रहे हैं। इन द टर्म ऑफ द मीडिया और इन टर्म ऑफ द मास कम्युनिकेशन वी कैन टेली टेक्स्ट। टीवी के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर भी आप देखते हैं, स्टूडियोज के ऊपर भी आप देखते हैं। तो जब आप यूट्यूब के ऊपर अपना लेक्चर अपलोड कर रहे हैं तो इस तरीके की चीजें जो है आप डाल सकते हैं रनिंग में। वो आपका जो है अच्छे तरीके से डिपिक्ट होगा और उसके जो व्यूवर्स हैं वो ज्यादा बढ़ेंगे। इसको मैं क्लिक करके साइज बढ़ा रहा हूँ, वीडियो का एडजस्ट कर रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने एडजस्ट कर लिया। इसके नीचे अगर वैसे यहाँ पे आया हुआ स्पीकर कौन डॉक्टर अमित सांगवान है, अगर इसके नीचे भी अगर आप कुछ और टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। यू कैन गो ऑन प्लस बटन एंड यू कैन क्लिक ऑन टेक्स्ट। Text is an important feature. You can okay. You can write here role of media. Media or ICT. And you can go here with the color, select color and select this color. Your content will be changed. If you go on the background color, you can also change the background color of your content. इसमें जो आपने इसका कंटेंट का किया उसके नीचे है बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड कलर आपने सेलेक्ट किया, ब्लू कलर सेलेक्ट कर दिया। यू कैन गो ब्लू। अब ये ब्लू तो नहीं आया, जब नहीं आ रहा तब नजर आएगा। इसके नीचे जो है बैकग्राउंड ओपेसिटी दे रखी है। बैकग्राउंड ओपेसिटी जब आप बढ़ाएंगे तो रोल ऑफ जो आईसीटी है उसके नीचे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है इसमें इसको कलर को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये देखिए मैं इसको कर्सर के साथ जो है आगे लेके जा रहा हूं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ज्यादा कम जो है वो कर सकते हैं। मैं इसको बीच में रखता हूँ, ये क्लिक किया, ओके क्लिक किया, आई विल क्लिक ऑन ओके। ये आ गया आपका। इसको एडजस्ट करने के लिए आई विल गो एयर, पुट इट एयर, शॉर्टन इट। ये सारा काम कर्सर से हो जाएगा। माउस की सहायता से आप जो है इस पे क्लिक करके इसको साइज को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और जिस तरह नीचे टेक्स्ट रनिंग में चल रहे हैं उसी तरीके से आप इस टेक्स्ट को भी रनिंग में कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अपना जो है अपने लेक्चर के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस हिसाब से करेंगे। लेकिन ये ना हो कि अत्यंत सुंदर बनाने के चक्कर में आप इसको भी रनिंग में कर रहे हैं, इसको भी रनिंग में कर रहे हैं, तो व्यूवर्स की आई पे असर पड़ता है, वो देख नहीं पाते, उस चीज को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए इसकी स्पीड ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि नीचे टेली टेक्स्ट के अंदर ही इंफॉर्मेशन आप डालें, इसको रनिंग में ना करें। करना चाहे कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर मना नहीं करता, लेकिन जब ज्यादा चीजें करेंगे तो आपका जो लेक्चर है वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इस तरह की चीजें जो है वो ऐड नहीं करनी चाहिए। अब मैं सीन 4 पे जाना चाहूंगा। सीन 4 जो हमने जनरेट किया था अभी, सीन 4 you can go on the click button in the sources, image slideshow. Click on the image slideshow. I want one thing more or clear with you people, that it will not, this software is not competent, compatibility is not with the PPT। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आप डायरेक्ट इस शेयर के अंदर जो है नहीं कर सकते। कारण क्या है कि ये इमेजेस तो ले लेता है, लेकिन पीपीटी की स्लाइड से अगर आप दिखाना चाहेंगे तो उसको आपको इमेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद जो है आप इसके अंदर दिखा सकते हैं, स्लाइड्स को दिखा सकते हैं। तो स्लाइड्स दिखाने, इमेज स्लाइड्स, ओके। ओके के बाद अब ओके
इमेज स्लाइड शो, ये पूछ रहा है क्रिएट न्यू हमने करनी है, तो क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, ओके। ओके के बाद ऑप्शन ये आ रहा है स्पीड लूप। लूप का मीनिंग यहाँ पे लूप जो दे रखा है 8000 की स्पीड है आपकी, कितनी स्पीड रखनी है कितनी नहीं। ऑटोमेटिक वर्जन आपको करना पड़ेगा स्लाइड मोड के अंदर, और साथ सेटिंग लूप आपको रखना पड़ेगा। लूप का मीनिंग ये है कि आप फर्स्ट स्लाइड के बाद फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, उसको 3 स्लाइड्स हैं, उसके बाद उसको कंटिन्यू अगर रखना चाहते हैं तो लूप पे क्लिक करना पड़ेगा, या सिर्फ अपने ऑडियंस को सिर्फ एक बार आप दिखाना चाहते हैं तो लूप को आप हटा सकते हैं। तो लूप, क्योंकि स्लाइड शो जब नाम दे रहे हैं तो लूप जो है वो रखना होता है। ओके पे क्लिक किया। हम अब स्लाइड्स निकालेंगे इसके उसमें से, इस पे इमेजेस पे जाके प्लस जब करेंगे ऐड फाइल्स आएगा। इमेजेस में मैं अब ये लगाना चाहूंगा इस तरह, मतलब ये प्रेजेंटेशन ने मेरी कोई पुरानी प्रेजेंटेशन पड़ी है जो इमेजेस की शेप में है। प्लस इसमें आप नंबर ऑफ स्लाइड जो है वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके 3, 4 जितने भी आप चाहें वो स्लाइड जो है वो इसके अंदर डाल सकते हैं। ये किया, इसके बाद ओपन करेंगे, सारी चीजें आ जाएंगी। इसमें आप अपनी मर्जी से घटा बढ़ा सकते हैं स्लाइड्स का, जो सीरीज जो सीरियल नंबर है उसको ऊपर नीचे अपनी मर्जी से ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। तो ये किया, इसके बाद ओके किया। ये साइज जो है बड़ा हुआ है, इसको हम छोटा जो है इस कर्सर्स की मदद से जो है वो छोटा कर देंगे। स्लाइड शो हमारा स्टार्ट हो चुका है। स्लाइड शो जो है, ये जो स्लाइड जो थी इमेज की शेप में, तो इस तरीके से हम अपनी पीपीटी भी जो है इस पे शेयर कर सकते हैं। और पीपीटी को जो है ये देखो ऑटोमेटिक चलेगा। अब हम कई बार ये सोचते हैं कि भाई ये मोड जो है ना, कंट्रोल जो है हमारे हाथ में होना चाहिए, ऑटोमेटिक मोड नहीं होना चाहिए स्लाइड शो का। जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो प्रेजेंटर चाहता है कि अपनी मर्जी से जो है हम उस पर करें उसको। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्लाइड्स के ऊपर जाके सेटिंग्स में हम जाएंगे। सेटिंग्स में जाके चेंजेस करने होंगे, हॉट कीज पे हमें क्लिक करना होगा। सेटिंग्स में जाके हॉट कीज पे क्लिक किया। हॉट कीज में इसमें ये है इमेज स्लाइड शो, इसके ऊपर जो नेक्स्ट स्लाइड का ऑप्शन है हम क्लिक करेंगे, कीबोर्ड पे राइट आ जाएगा, राइट। और प्रीवियस स्लाइड अगर दिखानी है तो इसमें लेफ्ट आ जाएगा। इसको हम ओके अप्लाई करके ओके कर देंगे। ओके कर दिया। ओके करने के बाद फिर इसमें ऑटोमेटिक मोड दिया हुआ है स्लाइड शो के अंदर, ऑटोमेटिक मोड है स्लाइड शो के अंदर। जब आप जाओगे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक को मैनुअल मोड पे हमें करना होगा। ये हो गया। और इस पे जब हम क्लिक करेंगे ओके, इससे ये स्पीड घटाना पड़ गया इसको, ये क्योंकि अनवांटेड लग रहा है, तो इसको अनवांटेड को अगर इस इमेज को अगर हमें हटाना है तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे, इस इमेज पे क्लिक करेंगे और इमेज का ऑप्शन हमारे सोर्सेज के अंदर मिलेगा। डिलीट इसको कर देंगे, डिलीट एंड यस। स्लाइड्स डिलीट हो गई। इसमें इस इमेज को भी डिलीट डिलीट, और ये भी क्योंकि हम यूज इसके अंदर नहीं करना चाहते ऑब्वियस लेक्चर का, चलो इसको चलाना चाहते हैं तो इसमें गए, वी कैन गो ऑन प्लस बटन, image slideshow, and we can select the images, add the files, we can add as many slides as we want as per our requirement of the lecture. Go on open and we click on OK. We can shorten the size. सभी को मेरे ख्याल में थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा, सारा समझ में तब आएगा जब करोगे, एक्सरसाइज करोगे, उसके ऊपर जो है
आपके जो है वो समझ में आ जाएगा। अब इसका क्योंकि हमने मोड जो है वो चेंज करना है इसको, दिस इज द अनवांटेड, वी कैन डिलीट इट। यस, ये इस तरीके से आपका स्लाइड शो जो है वो तैयार हो गया है। ये अपने आप जो स्लाइड चल रही है, इन इट इज इन ऑटोमेटिक मोड। मैनुअली जब हमें करना है तो मैनुअल हॉट कीज पे स्टूडियो पे मैं बता चुका हूँ, आप मैनुअली भी इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ आई कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, विंडो कैप्चर। आप अपने विंडो कैप्चर करना चाहते हैं तो विंडो कैप्चर पे क्लिक कर सकते हैं, विंडो आपकी जो है वो कैप्चर हो जाएगी। ग्रुप वाली इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। रिकॉर्डिंग वाला मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार, इस तरह मतलब रिकॉर्डिंग वाला जो पोर्शन है, ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे जब हम जाएंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑलरेडी लेक्चर की चल रही है, ये लेता नहीं लेता हम करके कोशिश करके देखते हैं इस तरह। मतलब स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर रहे हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। Our lecture is recording and I am presenting the OBS Studio, the quality, the utilization of OBS and the YouTube. स्टॉप रिकॉर्डिंग किया हमने, अब फाइल को इस पे गए, हम फाइल के ऊपर शो रिकॉर्डिंग में हम गए। ये हमने जो रिकॉर्ड किया, लेटेस्ट रिकॉर्ड किया है, वो आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। इसमें आप क्लिक करेंगे आपको दिखाई दे जाएगा। मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ जो अभी हमने छोटी सी क्लिप जो बनाई है। ये रिकॉर्डिंग आप देख चुके हैं, दिस इज द रिकॉर्डिंग। ये लेक्चर आप इस तरीके से रिकॉर्ड जो है वो कर सकते हैं। मैं अब इसके नेक्स्ट कंपोनेंट पे आता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग वाला आपके समझ में आ गया होगा। रिकॉर्डिंग का मेन तीन चीजें हैं, सीन है, सोर्सेज हैं। ऑडियो मिक्सर को आपको नहीं छेड़ना। ऑडियो मिक्सर जो है जिस तरह, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ माइक मेरा यूज हो रहा है, कंप्यूटर का माइक यूज हो रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी आगे पीछे हो रही है। डेस्कटॉप का जब आप ऑडियो कोई चलाते हैं तो डेस्कटॉप पे ऑडियो या वीडियो चलेगा तो उसमें ये वाली फ्रीक्वेंसी जो ऊपर वाली जो है ये आगे पीछे होगी फ्रीक्वेंसी। अब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है स्टूडियो मोड, एक इस पे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। स्टूडियो मोड पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपका स्क्रीन जो है दो भागों में स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन ये आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि जो मेरा जो स्क्रीन है वो दो भागों में स्प्लिट हो चुका है और मैं इस पे एक स्क्रीन पे जो है ऑनलाइन वर्किंग करते करते एडिटिंग का जो काम है, ऑनलाइन एडिटिंग भी जो है इस पे इजीली कर सकता हूँ। स्ट्रीमिंग वाले पे हम आते हैं, स्टार्ट स्ट्रीमिंग। अगर हम स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो स्ट्रीमिंग वाले पे स्टॉप स्टूडियो रिकॉर्डिंग, स्ट्रीमिंग वाले पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें ये आ गया कुड नॉट एक्सेस द स्पेसिफाइड चैनल। स्ट्रीमिंग वाले पे मैंने क्लिक किया, कुड नॉट एक्सेस द स्पेसिफाइड चैनल और स्ट्रीम की, प्लीज डबल चेक योर स्ट्रीम की इफ इट इज करेक्ट है। तो इसमें क्या होगा, हमें पहले या तो अपने यूट्यूब का या फेसबुक का वो जो है अपना खोलना होगा। मैं अपने फेसबुक अकाउंट पे जाता हूं, लाइव हम दिखाएंगे वो फेसबुक पेज से हम लाइव स्ट्रीमिंग जो है स्टूडियो के माध्यम से कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव जो है वो हम कर सकते हैं। तो इस पे डॉक्टर अमित सांगवान के नाम से मेरा पेज है, तो डॉक्टर अमित सांगवान पे क्लिक करूंगा मैं फेसबुक पे जाके। स्क्रीन इज ऑडिबल, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। आने के बाद नेट की स्पीड कम होने की वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें पेज खोलने में।
पे नहीं दिख रहा सर। क्या पे अभी खुलेगा? मेरे पास भी नहीं खुला है। जब मेरे पास नहीं खुला तो आपको कैसे दिखाई देगा? ये यहाँ पे खुलेगा फेसबुक पेज, तो आपको दिखाई देगा। ये नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा सा जो है ना ओके सर। टाइम लग रहा है इसमें। लाठर सुरेंद्र लाठर जी जुड़े हुए हैं, आईटी सेल से कोई जुड़ा हुआ है तो नेट की स्पीड कम होने की वजह से लाइव स्ट्रीमिंग वाला हम दिखा नहीं पा रहे। प्लीज रिक्वेस्ट है। सर वैसे तो सही चल रहा है, एक बार देख लेते ये हैं मैंने सर, चेक करवा लेते हाँ प्लीज चेक प्लीज करवाते हैं अगर सर अभी। पॉसिबल हो तो सर देखो। ओके 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 सर, ये थैंक यू। आप लोग ओके, थैंक यू। ये मैंने अपने लेक्चर की शुरुआत में बताया, इसमें केवल टीचर्स और स्टूडेंट्स का कसूर नहीं है। जो फैसिलिटी है पूरे इंडिया की हम बात करें, यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे इंडिया के अंदर नेट यूजर्स ज्यादा है और कोविड-19 की वजह से जो है वो इंक्रीज हुए हैं। रूरल एरियाज में भी अगर हम डाटा वहां से देखेंगे तो रूरल एरियाज के अंदर भी हमारे नेट यूजर्स बढ़े हैं। और नेट पे जो कॉस्ट है, नेट की कॉस्ट कम होने की वजह से कारण क्या है कि यूजर्स हमारे ज्यादा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कम होने, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का या उस लेवल का नहीं होने की वजह से इस तरह के इश्यूज आते हैं। और चलो कोई नहीं है, अब चल रहे हैं हम जब तक और सॉफ्टवेयर के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं दूसरे पहलुओं पे। इसका अगर कोई किसी पार्टिसिपेंट को अगर कोई डाउट है तो ही मैं आज द क्वेश्चन जो अब तक बताया गया है, कोई डाउट है तो बता दें। अगर स्ट्रीमिंग वाला अगर वो ओके हो जाता है ऑनलाइन मोड से, अगर ओके हो जाएगा मैं स्ट्रीमिंग भी आपको करके दिखा दूंगा। रिकॉर्डिंग वाले कंपोनेंट में अगर कोई डाउट है, रिकॉर्डिंग वाले कंपोनेंट के साथ साथ सीन अगर क्रिएट करने में या सीन के यूसेज के बारे में अगर कोई डाउट है, या तो आपको और कोई इस तरह के कोई सर, इश्यू है तो आप बता सकते हैं इस तरह वाले। सर मेरा एक डाउट है। जैसे आपने बताया यस जो आपकी जी, सर धीरज शर्मा नाम है, क्या नाम है सर? शुभ एफएसटी नाम अगर बता डिपार्टमेंट। दें। सर जो आपकी जी इमेज जी लगी हुई है जी जैसे धीरज जिसपे जी। ओबीएस और यूट्यूब का लोगो लगा हुआ है, और आपने साइड में अपना वीडियो चलाया हुआ है, और उसको दूसरे के ऊपर जी ओवरलैप कर दें और पीछे का जो आपका जी बैकग्राउंड है वो गायब हो जाए। कुछ ऐसा सिस्टम हो सकता है इसमें? क्योंकि मैंने काफी बार करने की कोशिश की है लेकिन मेरे से हुआ इसमें बिल्कुल 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 है इसमें धीरज जी, बिल्कुल है। आपका बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक क्रोमा की का फंक्शन दिया हुआ है। क्रोमा की से जो बैकग्राउंड है वो गायब हो जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड आपका जो है क्लियर होना चाहिए। मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ क्रोमा वाला। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिल्टर्स में हम जाके क्रोमा अप्लाई करेंगे तो वो चीजें आ जाएंगी, बैकग्राउंड जो है वो गायब हो जाएगा। लेकिन बैकग्राउंड हमारा क्लियर होना चाहिए, नहीं तो वो फिर बैकग्राउंड जो है ना वो प्लेन नहीं होगा तो फिर दिक्कत आएगी। मैं है। भी करके दिखा देता हूँ धीरज जी। Click on the video and go on the filters and then go on the chroma key. ओके, ये देखो बैकग्राउंड जो है आपका ब्लू करना चाहे ग्रीन करना चाहे, क्लियर नहीं है। पीछे सोफा रखा हुआ है, पीछे पेंटिंग रखी हुई, इस तरह का आप करना चाहे तो आपको इस तरह का बैकग्राउंड जो है प्लेन चूज करना पड़ेगा। इट विल बी इन सिंगल कलर, और इफ इट विल बी इन ग्रीन कलर और द ग्रीन शीट, इफेक्ट्स विल बी हाई, रिजोल्यूशन विल बी हाई। धीरज जी क्लियर हो गया मेरे ख्याल में? यस सर, जो ग्रीन स्क्रीन है वो यूज करनी पड़ेगी प्रोबेबली। अगर या तो ग्रीन या पूरी प्लेन है तो वो अगर आप यूज करोगे तो वो होगा। अब हम मैं वो ठीक है, फेसबुक वाला नहीं खुल रहा है, उसको छोड़ के यूट्यूब भी मेरा पार्ट है और टाइम की जो है समय सीमा 11:15 बजे अपना खत्म होना है लेक्चर। तो यूट्यूब के ऊपर मैं जानना चाहूंगा, थैंक यू सर। यूट्यूब के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ओके वेलकम जी। ओबीएस वाला मैं
मैं क्लोज कर रहा हूँ OBS पे, फिर भी अगर कोई डाउट है, देखो मेरा बैकग्राउंड अब चेंज हो गया क्रोमा की वजह से, लेकिन प्लेन ना होने की वजह से कर्टन साफ दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, सीनरी साफ से दिखाई दे रही है, पीछे जो पिलोज रखे हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो ये ड्रॉबैक है, क्रोमा इसलिए यूज करना ठीक नहीं, इसलिए यूज नहीं कर रखा था, लेकिन आपका प्लेन बैकग्राउंड है तो आप यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब OBS से शिफ्ट होके हम YouTube के ऊपर चलते हैं। YouTube के ऊपर 5 या 10 मिनट का समय लूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 मिनट में डिस्कशन का भी रखना चाहूंगा। तो 11:02 हो चुके हैं, मेरी जो घड़ी में 11:02 का समय हो चुका है। तो अब YouTube के ऊपर हम जाते हैं। तो YouTube वाला जो है इसको बंद करके YouTube का हम शेयर करते हैं आपके साथ। जो है सबका गूगल वाला बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, तो गूगल का अपना अकाउंट जो है आप तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले स्क्रीन मेरा क्लियर है, तो गूगल पे जाके आप अपना अकाउंट जनरेट करें सबसे पहले तो। और जिस टीचर का सॉरी जो भी आप नाम रखना चाहते हैं अपने चैनल का, वो उसके अंदर आप रख सकते हैं। क्रिएट ए गूगल अकाउंट आप उस पर लिखें और गूगल अकाउंट के आ जाएगा क्रिएट योर गूगल अकाउंट। ये अब पूछ रहा है कि आपका फर्स्ट नेम क्या है। आप अपने चैनल का जो भी नाम रखना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल का आप जो भी नाम रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। सपोज मैं मीडिया स्टडीज रखना चाहता हूँ अपने चैनल का नाम, मीडिया, और सेकंड नेम जो स्टडीज आप उसमें डालेंगे। ये फिर पूछेगा भाई क्या यूजर नेम क्या रखेंगे, यूजर नेम भी सेम ही रहेगा, मीडिया स्टडीज। फिर पासवर्ड जो है आप पासवर्ड डालेंगे, अपना पासवर्ड इसके अंदर शेयर करेंगे। पासवर्ड शेयर, फिर ये पूछेगा कंफर्म करो पासवर्ड। मीडिया स्टडीज वो जो है, क्योंकि एस रह गया था, एस हम क्लिक करते हैं और मीडिया स्टडीज के नाम का जो है दैट यूजर नेम इज टेकन ट्राई अनदर। ये कह रहा है भाई ये जो है आपका पहले से लिया जा चुका है मीडिया स्टडीज के नाम से। मीडिया स्टडीज के नाम से हम चेक करके देखते हैं, ये खाली अगर होगा मीडिया स्टडीज डॉट कर दिया है तो अब हो सकता है कि मिल जाए हमारे को। तो कंफर्म पासवर्ड, दोबारा से हम पासवर्ड करेंगे कंफर्म। ये नेक्स्ट पे क्लिक किया, आपको मेरे ख्याल में स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। कंफर्म पासवर्ड दोबारा से मांग रहा है। अवेलेबल ये दिखा रहा है स्टडीज मीडिया करके 51, ये मैं अब जनरेट कर रहा हूँ क्योंकि ये भी अवेलेबल नहीं है। स्टडीज ये क्लिक किया जो गूगल बता रहा है, इस पे मैं कंफर्म कर रहा हूँ, पासवर्ड कंफर्म करूंगा। तो पासवर्ड कंफर्म होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी आपका, वो मांगेगा कर दें। उसके बाद आप कॉन्टेक्ट नंबर जब आप देंगे, कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर 6 डिजिट का कोड आ जाएगा। कोड जो है आप अपना इसके अंदर डालेंगे, जैसे ही डालेंगे आपका जो अकाउंट है वो जनरेट हो जाएगा। मेरा क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट बना उसके ऊपर जाना चाहूंगा, यूट्यूब पे क्लिक करूंगा, क्रिएट यूट्यूब। ये जब यहाँ पे आप यूट्यूब वाले पोर्शन पे जाते हैं, ये मेरा अकाउंट है। Sorry, sir, to interrupt you. Not visible. procdlu.ac.in। Yes, ma'am. Video is not visible. Yes, madam. Sir, screen is not visible. Mode and one is input mode. In output mode, I have seen the screen. Please check your net connectivity. Visible हो गए क्या मैम? Yes, Is my sir. screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर।
ओके, थैंक यू फॉर द फीडबैक। ये गया मैं अपनी मेरी ये जो यूनिवर्सिटी की आईडी है जिस पे चल रहा है, तो इस पे यूट्यूब चैनल का ऑप्शन यहाँ मिलेगा आपको। यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया तो ये इस तरीके का विंडो आ जाएगा, और यहाँ पे ये क्रिएट, अपलोड द वीडियो और गो लाइव। गो लाइव पे अगर क्लिक करोगे आप डायरेक्टली, अगर गो लाइव पे जाना चाहेंगे तो गूगल आपको ये कहेगा कि आप एक बार जाएं, रजिस्टर्ड करें। आफ्टर 24 आवर्स आई विल कॉल यू। 24 घंटे के बाद जो है, आप जब स्टार्टिंग में अगर लाइव पे जाते हैं तो 24 घंटे के बाद जो है आपका अकाउंट जो है स्टार्ट होता है गो लाइव के लिए। यूट्यूब जो है गूगल ने परचेज कर 2005 में यूट्यूब की एक वेबसाइट के रूप में शुरुआत हुई थी, तो गूगल ने परचेज, गूगल ही यूज करता है। तो गो लाइव पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि इस जो ईमेल आईडी जो खुली हुई है उसमें मेरा गूगल का, यूट्यूब का अकाउंट नहीं है, मैं गो लाइव अगर क्लिक करता हूँ तो इस तरह की चीज जो है वो आ जाएगी। जो क्रिएटर योर जर्नी, गेट स्टार्टेड अगर मैं करता हूँ, नो थैंक्स किया, और गो लाइव पे मैंने यहाँ क्लिक किया, गेट स्टार्टेड, ये आ गया डॉक्टर अमित सांगवान, यूजर नेम डॉक्टर अमित सांगवान, बाय लिंक सिलेक्ट, और कस्टमर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट किया। यूट्यूब पे इसमें ये वर्क लेक्चर में भी मजा आता है, सारी चीजें फटाफट अगर चीजें जो है वो काफी, अब इसमें क्लिक कर रहे हैं, चीजें अपलोड करने कर रहे हैं, लेकिन नेट स्लो होने की वजह से चीजें नहीं हो रही। लेकिन जब आपको कोई वीडियो अपलोड करनी है तो आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक चीजें खुल जाएंगी, और आप जो है अपना कोई भी वीडियो सिलेक्ट करके थंबनेल वाला लोगो या कौन सा है आप यूज करना चाहते हैं, वो आप अपनी मर्जी से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो कर सकते हैं। इसमें लर्न मोर वाला जो ऑप्शन, सिलेक्ट फाइल, आप अपनी कोई फाइल सिलेक्ट करके जो है उठाता हूँ, ये लाइव एबीसीडी वाली वीडियो, छोटी वीडियो है ताकि जल्दी अपलोड हो जाए। ये अब ऑप्शन कह रहा है कि टाइटल रिक्वायर्ड, आप जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अपना लेक्चर जो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आप अपना टाइटल, मीडिया मैनेजमेंट में डालना चाहता हूँ तो मीडिया मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट मैंने डाला। मीडिया मैनेजमेंट क्या है, ये मीडिया मैनेजमेंट मेरा टाइटल हो गया वीडियो का। डिस्क्रिप्शन अगर कुछ डालना चाहते हैं, फॉर द स्टूडेंट्स और स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, स्टूडेंट्स ऑफ, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, लाइव यही रखना है, आपकी मर्जी है। थंबनेल अगर कोई और डालना चाहते हैं तो थंबनेल, सपोज करो मैं अपना फोटो इस पे डालना चाहता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को पहचान में आ जाए, तो मैंने थंबनेल पे क्लिक किया। ऑडियंस आपके किस तरीके के होंगे, अगर आप किड्स का डालेंगे तो उसमें ड्रॉबैक ये किड्स के लिए, क्योंकि 18 साल से ऊपर होना चाहिए यूजर जो है नेट का, तो वो जो है कमेंट्स जो है वो आपके रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। तो आप फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट,
ये आप पूछ रहे हैं कि सेव और पब्लिश, आप इसको पब्लिश करना चाहते हो, प्राइवेट रखना चाहते हो, या लिमिटेड लोगों के पास अगर भेजना है तो अनलिस्टेड इसका जो कंटेंट है वो लिंक जनरेट हो जाएगा, आप शेयर कर सकते हैं। पब्लिक के सामने शेयर करना चाहते हैं तो वो आप पब्लिश कर सकते हैं, पब्लिक पे क्लिक कर एम्बिट पे शेयर करेंगे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, आप किसी भी उस पे कर सकते हैं। मैं अगर यूट्यूब पे शेयर करना चाहता हूं तो मेरे को कुछ नहीं करना, इसमें पे किसी पे भी क्लिक नहीं करना। मेरा लिंक ये कॉपी हो गया, लिंक ये जो कॉपी हुआ है, लिंक मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूं आपके पास। अपलोड करती है, ये छोटी वीडियो इसलिए डाली है क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगेगा, तो इस वजह से। इसके लिए फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जेएमसी वो भी मैंने डाल दिया है, और इसमें ये दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल में सभी को, वॉइस भी आ रही होगी। लिंक जो है ये नीचे, लिंक जो है, लिंक आ गया है, लिंक आप अपना शेयर कर सकते हैं। लिंक जो ये ऊपर भी है, इसको कॉपी किया है मैंने, Ctrl+C, एंड आई गो ऑन द चैट बॉक्स। मीट के चैट बॉक्स पे गया, चैट्स हैं, चैट बॉक्स पे क्लिक किया, ये चैट बॉक्स पे मैंने ये डाल दिया, अपना लिंक जो है ये डाल दिया। ये जो हमने वीडियो जनरेट की है वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। अब टाइम सिर्फ 5 मिनट और हम लेंगे, मेरा बहुत हो गया। आप जो है अपने उससे ये बता दें प्लीज, अगर कोई फीडबैक अगर देना चाहते हैं तो मैं आई विल इम्प्रूव माई लेक्चर, और कोई इस तरीके का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए ओपन है। कोई क्वेश्चन है तो मेरी ईमेल आईडी मैं लिख के दे रहा हूँ, आप ईमेल के ऊपर क्वेश्चन जो है। सभी टीचर साथी हैं, सभी टीचर्स का मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा, आप लोगों ने पेशेंसली सुना। और कोरोना ने पुरानी लिखी इबारत को खत्म कर दिया है, हमें नई स्लेट लिखनी होगी। कोरोना के साथ जीना है और आगे बढ़ना है की जरूरत है, और यह हमारे लिए भी अवसर भी है। हमें अपनी सोच तथा व्यवहार को बदलना होगा, पहले सोच और फिर व्यवहार और फिर होना होगा। सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने का उद्देश्य है। जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये प्रोफेसर विक्रम सिंह जी को डायरेक्टर बनाए हैं, मैडम हैं डॉक्टर सरोज मेहता जी, वो इसके इंचार्ज रहेंगे। तो इसका उद्देश्य भी तभी सार्थक सिद्ध होगा जब हम अच्छी तरीके से स्किल्स को एनहांस करेंगे और अपने आप को जो आगे बढ़ाएंगे। तो आप अगर कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं अपनी बात। पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, कोई फीडबैक अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। सर नमस्कार, 2 मिनट लूँ सर? सर मैं नमस्कार सर, मैं सर शुक्रगुजार हूँ आपकी। थैंक्स फॉर दिस सेशन एंड बहुत फ्रूटफुल रहा, हम लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिला। और आप सभी लोगों के सहयोग से हम इस तरह की ट्रेनिंग्स अरेंज कर पाएंगे। कोई और तरह का भी सजेशन हो इस तरह की ट्रेनिंग्स को फर्दर इम्पार्ट करने का, तो प्लीज़ लेट अस नो। अंडर द डायरेक्टोरेट गाइडलाइन हम आगे बढ़ते चले जाएंगे आप लोगों के साथ से। थैंक यू सो मच सर फॉर योर लेक्चर। मैडम, आप जिस तरह आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है टीचर्स को, गुलशन जी ने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, इन्हें ट्रेनिंग जो प्रोवाइड की है वो हम सभी शुक्रगुजार हैं। फिर डॉक्टर सुरेंद्र कुंडू जी का वो भी बहुत अच्छा था गूगल क्लासरूम के ऊपर। जी सर, वो 3 बजे वाला जो बहुत बड़े नाम है नॉर्थ इंडिया के अंदर, इंग्लिश डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर हैं, वो आप लोगों के साथ विचार साझा करेंगे, हमारे साथ विचार साझा करेंगे। तो मैडम आपके स्पीकर्स भी अच्छे हैं और आपका जो उत्साह सीखने वाला है, तो हमें सीखने का काफी कुछ मिल रहा है। हम भी आप लोगों का धन्यवाद करते हैं, डायरेक्टरेट का धन्यवाद करते हैं। और कोई पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि समय सीमा पे हमारा लेक्चर खत्म हुआ है, 1-2 मिनट के अंदर अगर कोई सुझाव 1-2 पार्टिसिपेंट अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।
नहीं तो हम मीट को जो है वो क्लोज कर रहे हैं, और ठीक टाइम पे शुरू होके ठीक टाइम पे अगर क्लास अगर खत्म हो जाती है, लेक्चर खत्म हो जाता है, ये भी जो है एक टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा है। डॉक्टर विजय हम सर नहीं देना